So, my dear students, will continue with Karo, and we have completed with Karo applicability. Now, we'll further move ahead with the matters which are to be reported under Karo. The matters which are to be reported, there are in all 16 matters which needs to be reported under Karo. The auditor has to report on these 16 matters. Now, what are those matters? I told you in last lecture that it is divided into two parts, applicability and matters to be included. So there are in all 16 matters. 16 matters. Okay. The very first one which comes, paragraph 3, 1. It's on fixed assets. Now, fixed assets auditor needs to report इसका diagrammatic formation presentation तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है? तो fixed asset, you need to just pay attention on this fixed asset. Here, auditor should ascertain that whether the company is maintaining the appropriate records with respect to fixed assets, including its particulars. फिक्स्ड एसेट्स में तो बहुत सारी चीजें होंगी, फिक्स्ड एसेट में तो बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं. तो whether the company is maintaining an appropriate records with respect to fixed assets, ये ascertain करना है. And record जैसे जैसे नहीं, this record should be right, maintaining full particulars. See, now our question is why they want to say whether the company is maintaining the records or not. See, anyways, which you know, auditor is appointed to express opinion on the financial statement, right? These financial statements are prepared and presented by auditor. Management, those charged with governance, right? This financial statement includes balance sheet, and balance sheet includes asset side में fixed asset, right? तो fixed asset सिर्फ ऐसे ही lump sum asset का figure नहीं लिख सकते fixed asset और उसके सामने ये. तो you know the segregation part. You have seen in schedule 3 the presentation, the way it is being presented, right, and shown in the financial statement. तो कैसा है कि उसका full particulars अब उसके schedule में जा करके as well as this particulars with respect to its quantitative details as well as the location of asset, ये भी उन लोगों ने बोला हुआ है. Quantitative details as well as location of asset. Suppose if I have a class in Borivali as well as in Andheri, so I have asset at, why they have said quantitative details or location details. So I will show in my fixed asset, furniture and fixture is my asset, AC is my asset, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, अंधेरी वाले और इधर मिलाकर मैंने इधर 100 बेंचेस दिखा दिए, 100 बेंचेस या जो भी. तो 100 बेंचेस इज
दिस एंड दिस बोथ, ठीक है, दिस एंड दिस बोथ। अब कौन सी कहाँ पे भी मैं बोरीवली सेंटर पे पहुंच गया, वहां पे गिनती के वहां पे सिर्फ 60 थे। मेरा ऑडिटर आता है वो बोरीवली सेंटर पे जाता है, वो 60 थे, वो बोल रहा 100 दिखा रहे 60, कंफ्यूजन हो, राइट, उसके मन में ये आएगा, फिर उसको वापस से हमको कम्युनिकेट करने को पड़ेगा कि भाई 100 दिखा रहे 60 के, बट उधर ही सेग्रीगेट करके बता दिया 60 यू कैन फाइंड आउट एट बोरीवली एंड 40, तो वो यहाँ पे देख करके इसको टिक करके वो निकल जाएगा। फिर फॉर द अदर 40 ही विल गो टू अंधेरी वाला पार्ट, क्योंकि एसेट का वेरिफिकेशन तो होगा ही। Are you getting? So whether appropriate quantitative details and location of fixed asset has been shown. तो particulars सारी चीजें, मतलब एक चीज बता करके फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दिखा करके उसके सारी क्वांटिटेटिव डिटेल्स एज वेल एज द लोकेशन ऑफ द एसेट नीड्स टू बी शोन। आर यू गेटिंग? फिर ये देखना है कि whether the company is conducting the physical verification is being done at regular intervals. Now why there is a requirement of physical verification? Physical verification means whatever it is shown in the balance sheet, the उतने asset है कि नहीं हमारे पास, why it is necessary? हो सकता है the asset might be stolen by someone, right? So if it is stolen, तो in books of accounts it might be showing, समझो मैंने chairs दिखा दी है 20 chairs, ठीक है, बेसिकली वो आएगा नहीं below 5,000, बट समझो मैंने 10,000 20,000 वाली chairs ली हुई है, तो 20 chairs है, ठीक है, तो उसमें से 20 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा है, बट 20 है या नहीं कैसे पता चलेगा? मुझे देखने जाना पड़ेगा, बराबर। अब मैं देखने जाऊंगा उस पे गिनती पे हो सकता है 18, मतलब 2 कहाँ गई, 2 चोरी हो गई, राइट। तो ये सब एज इट इज है या नहीं, ये फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब एक काउंटिंग ही होता है, लाइक अ स्टॉक, इसका भी एक काउंटिंग होता है, बट दिस सेड कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डन एट रेगुलर इंटरवल्स और नॉट। कौन करेगी? देखो उधर कंपनी के यहाँ से एरो निकला है, कंपनी के यहाँ से एरो निकला है, तो इफ द फिजिकल वेरिफिकेशन आर डन और रीजनेबल रेगुलर, it is a reasonable interval. Reasonable intervals. Reasonable intervals means बहुत सारे assets moving assets होते हैं, moving assets होते हैं, movable assets होते हैं, like suppose if I am a company, which is a goods carriage company, गुड्स कैरेज कंपनी या एविएशन में तो मेरे एयरक्राफ्ट होंगे, और इफ आई एम डीलिंग विद टूर्स एंड ट्रैवल्स तो मेरी बसेस होगी। नाउ दीज, और मेरे अलग अलग जगह पे सेंटर्स होंगे, तो अभी these particular this trucks, this aircraft, buses, they keep on moving every now and then. So ensuring just for the purpose of verification एक ही दिन सारे ले आने और to keep our operations at hold, that is not practically possible in such cases, right? तो एक साथ में ही नहीं हो सकते, बट समझो मेरे पास ट्रक है, 200 ट्रक है, तो वो 200 एटलीस्ट काउंट हो जाना चाहिए विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 2 to 3 years, उसमें हो ही जाने चाहिए कि सारे काउंट हो जाए। Are you getting? I should have such a mechanism. सर अभी कैसे पता चलेगा ये वही ट्रक है? क्योंकि इसके चेसी नंबर होता है, इसका इंश्योरेंस पे मिल जाएगा, इंश्योरेंस रिन्यू होता है उसके बेसिस पे, तो वो सारी चीजें, इंश्योरेंस रिन्यू हुआ नहीं हुआ, ठीक है, वो सारी चीजें देख करके, और इसका एसी नंबर, ट्रक नंबर, पासिंग नंबर होता है, उसके बेसिस पे उसको देख सकते हो। एटलीस्ट इन 3 years ऐसे सारे एसेट्स का काउंटिंग मेरे क्लास में हो सकता है, इट इज नॉट मूवेबल बट दीज आर मूवेबल एसेट्स फॉर द कंपनी, तो वो रीजनेबल इंटरवल पे सारे कवर हो जाने चाहिए, एंड रीजनेबल इट इज विद इन अ पीरियड, विद ए गिव अ पीरियड ऑफ रैंडमली सेट इट इज 3 years। अब मैंने काउंटिंग किया तो देयर इज अ चांस कि देयर इज एनी variances, differences,
तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन इज देयर एनी मटेरियल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शंसीज मतलब इन शॉर्ट एक मिनट description in short it is variances differences they are using any word discrepancy है या नहीं if is there any material discrepancy मतलब in short I can say you करके is there any difference in the fixed assets as per books of accounts and action है या नहीं देखो यस और नो नो अगर मतलब जितने हमने बोले थे कि 60 40 या 20 जितने भी हमारे एसेट है वो है और है उतने ही है मतलब इन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज एक्चुअल दोनों में है ठीक है तो क्या नहीं मतलब डिस्क्रिपेंसीज नहीं है तो क्या होगा मैटर क्लोज हो जाएगा बट इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी are you getting discrepancies है मतलब there is a difference means now basically हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया और ये है तो स्टॉक के केस में हमने क्या कर रहे थे उसको प्रॉपर एडजस्टमेंट अकाउंटिंग करके डिस्क्लोजर देना पड़ेगा तो वेदर इट इज प्रॉपरली डेल्ट इन कहाँ पे डील करना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पर एसेट बढ़ नहीं जाएगा 20 मंगवा रहा 21 बड़े 21 नहीं होने कम नहीं होने वाला है कोई चोरी करके लेके जाएगा अपने घर का लाके लगा के देने नहीं है तो whether it is properly dealt or not and with respect to fixed assets the title deeds of immovable property are in the नेम ऑफ कंपनी ये जानना है तो ये तीन चीजें देखनी थी ये सबसे पहले पर्टिकुलर्स रखा है इन लोगों ने अपने एसेट्स का which includes quantitative details as well as the location of asset by location ऐसा होता है मैंने क्लास का भी एग्जांपल लिया और ऐसा भी हो सकता है मूवेबल एसेट के केस में ठीक है एंड whether physical verification is done at reasonable interval क्यों बोला because there is some sort of movable asset तो उसके केस में और अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो whether any material discrepancy was found if yes so it goes as and finally the title deed needs to be seen अब कैसा है पैरा 3(2) ये बहुत बार हम कर चुके हैं राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इट स्पीक्स अबाउट इन्वेंटरीज इन्वेंटरीज का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है हुआ है या नहीं अब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है तो whether any material discrepancy is ascertained if it is ascertained so whether it is properly dealt in books of accounts or not तो कोई गड़बड़ हुई स्टॉक कम है ठीक है तो उसको प्रॉपर्ली डील किया है या नहीं ये तो हमने बहुत जगह पे देखा ऐसे 501 में देखा इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तभी भी हमने हमारे एग्जाम्पल में रखा हुआ चोरी हो सकता है ये वो तो दिस इज बेसिकली सेम एंड लाइक दिस ओनली so we'll go on para 3 para 3 speaks about loans and advances you don't need to check this out it is actually given in your book ठीक है तुम्हारे बुक में वो है so this is the case and now para
loans and advances, loans and advances, loans and advances कौन से पता है, which the company has granted, मतलब in short can I say given to someone, means it is we have linked some, given, somebody has borrowed from us, so it is our asset. Oh, granted, but यहाँ पे सारे नहीं है, the granted to any other company or firm including LLP or others with respect to whom a रजिस्टर इज बीइंग मेंटेन। अब कंपनीज एक्ट के तहत एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है अंडर सेक्शन 189, रजिस्टर इज मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 189, कंपनी फॉर्म LLP or other parties with respect to whom the register is maintained under section 189। क्या इन लोगों को लोन दिया, दूसरों को दिया है, अदर्स भी, ये वाले जिनके रिलेटेड हमको ये करना है रजिस्टर में, उनका नाम है। अभी ये सेक्शन इज इन योर सीए फाइनल, सो इट शुड नॉट बी डेल्ट राइट नाउ एंड इट विल टेक मोर देन अ लेक्चर टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड दैट इज अ लॉ का पार्ट। तो अभी उसको उतना इन डेप्थ जान के जरूरी नहीं है, मतलब नहीं है, बट यू शुड नो सो मच ऑफ इट कि वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड the loans to any other company or firm including LLP or and other parties with respect to whom the register is maintained। और एक ऐसा भी हो सकता है ग्रांट विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर इज नॉट टू बी मेंटेन, तो कुछ और लोगों को दिया है जिनका नाम हमको 189 के वो क्राइटेरिया में प्रोविजन में फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस पीपल आर नॉट टू बी ट्रीटेड ओवर here, not to be considered over here, only those people who are attracted by the provisions of section 189 of the Companies Act 2013, उन लोगों को यहाँ पे लेना है और उनके रिलेटेड बात करनी है। तो यहाँ पे ये है whether the loan is granted। Now you tell me one thing, if we grant a loan, तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब हम लोन ग्रांट करते हैं तो इट इज अ लोन गिवन टू समवन, राइट, मींस द अदर पर्सन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू repay us that particular, and when he is supposed to repay us, it will be with some sort of addition, means which comes in the form of interest, right? Means there will be some sort of, whenever we give a particular, कोई किसी को आप ही दे देते कि 500 रुपए दे दिया, समझे ना, तो बोले हाँ 10 दिन में देता हूँ, तो कुछ ना कुछ टर्म्स ऑफ रीपेमेंट होते हैं। तो यहाँ पे तो कंपनी ने लोन दिया हुआ है, तो देयर विल बी दूसरी कंपनी को या फर्म को या LLP को या अदर पार्टी जिनका रजिस्टर मेंटेन हो, तो मींस देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस decided between the person who is giving the loan and person who is taking the loan, right? There might be some sort of agreement, so whether those terms and conditions are prejudicial to the interest of the company। अब ये जो लोन ग्रांट किए हैं to such people, ठीक है, whether the terms and conditions of loan are prejudicial। ये prejudicial शब्द हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा था, बेसिकली ये शब्द हमने देखा था 143 में, नो 1 में, the matters to be inquired। अब वो जो matters to be inquired था ना, that was generally considering all the loans and advances, not specifically this। तो कोई भी लोन दो वो हर चीज को कंसिडर कर रहा था। अगर समझो वहां पे कोई ऐसी पार्टी है जो ये सेक्शन 189 में फॉलो होती है और उसके टर्म्स सही नहीं थे, तो वो इधर रिपोर्ट होगा, इधर रिपोर्ट होगा, आर यू गेटिंग? और वो जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 बोल रहा था, जो कंपनी ऑडिट का वाला पार्ट है, तो आपने देखा होगा मैटर्स टू बी इंक्वायर्ड बाय द ऑडिटर,
उसमें ही उसने बोला हुआ था करके, एनी लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी वेदर द टर्म्स आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब हम लेते भी हैं तो फिर भी वो है, वहां पे लेने वाली बात हो गई थी, तो लेने के टाइम पे भी नहीं और ये जो दिया है वो टाइम पे भी नहीं, ठीक है। ये चेकआउट करेंगे ना, टर्म्स एंड कंडीशंस विल चेकआउट, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे व्हिच आर एटलीस्ट फीजिबल एंड नॉर्मल, समझो हम लोन देते हैं तो दैट इज अ नॉर्मल पॉलिसी, उसके बेसिस पे देंगे, और अगर नहीं भी देते तो जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होगा वो रेट के करीब हम देंगे। अब वो हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हम जिस किसी को भी लोन देते हैं वो बंदा बोलेगा ना 500 रुपया तुमसे लिया तुम्हारे दोस्त ने, वो बोलेगा 10 दिन में लेता हूं, तो इज देयर a schedule of repayment was decided, stipulated, schedule of repayment of what, repayment of what, भाई लोन दिया है तो अब जब ईएमआई आएगा तो उसमें क्या क्या आता है, प्रिंसिपल पर प्लस इंटरेस्ट दोनों आएगा, है ना। सो द schedule of repayment was determined was cleared और stipulated, ठीक है। उन लोगों ने जो भी शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट में लेमन लैंग्वेज में बोलता हूँ was decided, मतलब ईएमआई या जो भी है manner in which the repayment was supposed to be received was decided। अब हुआ ही रहेगा yes, नहीं, नो, तो फिर तो कुछ अलग ही उसका इन्वेस्टिगेशन उसको रिपोर्ट करेगी। इफ yes तो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट डिसाइड कर देने से कुछ नहीं होता। See nowadays due to lockdown कैसा हुआ कि many of the people has defaulted and try and understand one particular scenario. Due to this lockdown people were not working, so any of their obligation, any of their EMIs, किसी ने घर लिया, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने, so if they were supposed to make, but obviously they are not earning, so they were supposed to make a default over there. Government was also knowing, so that's why they came out with a moratorium करके, हाँ बाबा you can shift, so that up to the period of this 3 months it will be carry forward for this 3 EMI, it will be carry forward to post that when you start earning then you can resume on repayment, are you getting? But ये actually देखने जाए तो सबके केस में default ही है, situation is different and there is a relaxation with respect to that, but it is a default, तो schedule of repayment तो previously it was decided, ठीक है, इसमें कोई action नहीं लेंगे, but normally schedule of repayment is anyways which decided, are you getting, whenever loan is given, तो वो decide हुआ है yes, but whether question ये है कि regular payment is received, हमको मिला भी है या है या नहीं। अगर मिल गया है यस, तो matter will be closed, so no adverse impact, but if it is big no, so suppose if I have given you loan or you have given me loan, ठीक है, 1 lakh 2 lakh 5 lakh 10 lakh whatever you have given me loan and I don't repay you, so what, one or the other day you will become irresistible, right or not, you will take some sort of action, are you getting? तो वैसे ही देखेंगे if no, so we'll check out whether there is any amount overdue for the period exceeding 90 days। 90 days बेसिकली क्या होता है, 3 EMI तक वो चला देते हैं, नोटिस वोटिस देते हैं, थ्रेड कॉल आ जाता है या जब रिक्वेस्ट कर लेते हैं, इनिशियली वैसे शुरू होता है। अब एनी अमाउंट ओवरड्यू फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज, क्या इसको लेकर के कोई एक्शंस फॉर रिकवरी लिया है या नहीं, वो भी जानेंगे कि अगर कोई अमाउंट ओवरड्यू हो गया है फॉर
पीरियड एक्सीडिंग 90 days, तो बेसिकली क्या हो जाता है, वो 3 महीने हो जाते हैं। तो वेदर एनी नेसेसरी रिकवरी एक्शंस आर टेकन बाय द कंपनी और नॉट, ये इधर देखा है। तो दिस कम्स विद पैरा 3 लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ नहीं है, ये एक छोटी सी, इट इज लाइक कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। अगेन ये दोनों ही सेक्शन तुमको उधर फाइनल, ये फाइनल के सेक्शन कंपनी लॉ में आएंगे। अब अगेन लर्निंग ऑल दीस सेक्शन व्हिच इज नॉट करंटली अ पार्ट ऑफ योर syllabus, and if it is, so you might have learned it. तो ये है 185, whether the provisions of these sections are duly complied by the company or not, बस उतना ही देखना है, yes or no, if no तो वो adverse reporting में चला जाएगा। So this is para 3, whether the provisions of this has been complied, duly complied or not। इसके बाद आते हैं, इसके प्रोविजंस आर पैरा 3(5). पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब अब देखना है कि पब्लिक डिपॉजिट की बात आ गई, तो वो पब्लिक डिपॉजिट वही एक्सेप्ट कर सकते हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक का एक्सेस हो, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ही होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं होगा। तो इट इज इफ इट इज एज सच के कंपनी हैज accepted public deposit, ठीक है। तो whether this particular company has complied with the rules or regulations or provisions of RBI section 73 to 76 of companies act or any other RBI के directives with respect to this, any directions, जैसे अभी मोराटोरियम को लेकर के RBI ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं, तो वैसे ही अगर पब्लिक डिपॉजिट को लेकर के कुछ भी डायरेक्शंस दिए हुए हैं कंपनी को, तो वो कंप्लाई किया है, या नॉर्मली जनरली दिए तो वो किए। एंड the provisions of section 73 to 76 of the Companies Act and any other laws or regulation or any other provisions, Companies Act में कोई और provisions है with respect to public deposit and the rules and regulations thereunder with respect to public deposit, तो ये सारे comply हुए हैं या नहीं। and in case any order has been passed, in case कंपनी के लिए कोई ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर इज पास बाय एनी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर कोई कोर्ट, या फिर आरबीआई, किसी ने भी अगर ऑर्डर पास किया है, तो द provisions or the requirements mentioned in the order are duly complied by the company or not with respect to public deposit, वो चेक किया जाएगा। This is with respect to public deposits। फिर आता है पैरा 3(6) that is cost record। cost record हमने कंपनी ऑडिट में देखा सेक्शन 148, all those companies which are required to, इसको orally करना, which are required to maintain cost record are covered under the notification of or order, we can say, of section 148(1), and company dealing in those products, manufacturing those products or services which are covered or mentioned in that notification, whether they are maintaining cost records or not, वो पैरा 3(6) में है, getting, तो वो पैरा 3(6) में है। उसके बाद अच्छा वाला है दैट इज स्टैट्यूटरी लीव्स।
statutory dues with respect to what? Means what do you understand? Statutory dues means all those dues which are to be paid under the requirement of any statute. मतलब कोई statute बोलता है that amount is to be paid under the compliance or the requirement or as determined by any statute means law या act. अब वो कौन कौन से आ गए? इनकम टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट है, जीएसटी भरते हो, ठीक है, कस्टम्स भरते हो, ठीक है, प्रोविडेंट फंड भरते हो, वो भी प्रोविडेंट फंड की एक्ट की रिक्वायरमेंट है, ईएसआईसी भरते हो, वो भी उसकी, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज, व्हाटएवर, जीएसटी, व्हाटएवर, ठीक है. तो ऑल दोज आर द मैटर्स, all those are the payment statutory dues which are to be made by the company. ठीक है. Statutory dues. Statutory dues with respect to, I'm saying it orally again, provident fund, ESIC, income taxes, taxes, custom duty, GST, etc., etc., or any other payment under the requirement of dues. Of statutory dues, which are whether the company is regular स्टैट्यूटरी ड्यूज ऐसा हो सकता है कि वो अनडिस्प्यूटेड हो या डिस्प्यूटेड हो. बट डिस्प्यूटेड के केस में दे आर only dealing with those dues which are resulting into an income to the government, that is income tax, excise duty, GST भी आ जाएगा, सेस या तो फिर वैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहां पे दिया हुआ है तुम्हारे नोट में. विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी और वैट और जीएसटी, ये सारी चीजें आ गई. ठीक है. डिस्प्यूटेड के केस में इतने कोई, डिस्प्यूटेड मींस वेयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द taxpayer with respect to calculation or understanding, taxpayer and the department, और वो दोनों के बीच में केस चल रहा है. ठीक है. डिस्प्यूटेड, अब डिस्प्यूटेड रहा तो वो तो केस चलना ही है. इफ इट इज डिस्प्यूटेड, इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट with respect to the dues mentioned over here, तो ये जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट इसको लेकर के the amount involved in dispute and the forum, मतलब कहाँ पे forum where dispute is being going on, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो रहा है, ट्रिब्यूनल में हो रहा है, या फिर कहाँ पे हो रहा है. ठीक है. कमिश्नर के साथ हो रहा है, तो वो सारी चीजें देखी जाएगी. बट विद रिस्पेक्ट टू अनडिस्प्यूटेड ड्यूज इट इज सेड कि वेदर, अब अनडिस्प्यूटेड है जो रेगुलरली हमको पे करना है, तो वेदर कंपनी इज रेगुलर इन पेमेंट ऑफ regular in its payment. अब बात दो निकल के आएगी यहाँ पे, रेगुलर इन इट्स पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ड्यूज. यहाँ पे दो बात निकल के आएगी, क्या? ईदर yes or no. If company is regular in payment of undisputed dues, so matter is closed. The company can be said that it is regular in payment of dues when the payments are
made on or before the due date of payment. रेगुलर कभी बोलेंगे कि जब कभी भी उसकी ड्यू डेट फॉल होती है उसके पहले ही पेमेंट हो जाए या उस दिन तक हो जाए तो रेगुलर माना जाता है. पोस्ट दैट इवन इफ इट इज पेड यू आर नॉट सेड टू बी रेगुलर. यू आर नॉट सेड टू बी रेगुलर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ नो, अगर रेगुलर नहीं है, अनडिस्प्यूटेड ड्यूज की बात कर रही है. इफ नो द कंपनी इज नॉट रेगुलर इन, तो यहां पे डिस्प्यूट खड़ा होगा. तो यहां पे लिखेंगे the extent of arrears. The extent of arrears, the outstanding amount, extent of arrears with respect to outstanding statutory dues, the outstanding amount. Outstanding statutory dues for the period exceeding 6 months from the due date of payment. Period exceeding 6 months from the due date of payment or payment date. मतलब due date of payment किया गया. Now, what do you understand by this? In case of GST, in case of monthly return file होता है and मंथली वाले केस में मंथली ड्यूज पे करने होते हैं. तो ड्यूरिंग दी ड्यूज आर टू बी पेड मंथली. जितना भी तुम्हारा कलेक्शन होगा वो तुमको पे करना होता है. द ड्यू डेट इज 20th of next month. Means suppose if the current month is June 2020, तो ये महीना जो खत्म हो जाए, ये महीने में तुम्हारे जितने भी बाय सेल हुए हैं उसका आईटीसी ले करके तुमको क्या हो जाता है, तुमको क्या करना होता है, तुम्हारा जो भी जीएसटी लायबिलिटी आता है, रिटर्न तो भरना ही है. इन केस जीएसटी लायबिलिटी होती है तो दैट अमाउंट नीड्स टू बी पेड. द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज आल्सो and the due date of return is also the 20th of next month. Means क्या हो जाएगा जून के लिए, it will be 20th of June. तो my due date of payment or payment date is, तो ये जो शब्द है outstanding statutory dues, the period which are for the period of 6 months from the due date of payment. तो payment यहां से 6 महीने, यहां से 6 महीने एज ऑन द डेट, लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब हम क्या करेंगे, लास्ट डेट पे देखेंगे, लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल पीरियड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो क्या हो जाएगा, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर. देखना है इधर, सितंबर, अब मार्च का महीना है, एज ऑन 31st मार्च देखना है, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कभी बन जाएगा, एज ऑन 31st मार्च. तो अब इसको लेकर के ही देखेंगे कि कौन सा ये है. अब इसका पेमेंट डेट मेरा कब होगा, 20th ऑफ मई, इसका 20th ऑफ जून, इसका 20th ऑफ जुलाई, इसका 20th ऑफ अगस्त, इसका 20th ऑफ, इसका 20th ऑफ अक्टूबर, इसका 20th ऑफ नवंबर एंड सो ऑन. सो नाउ इट डजंट मैटर. ठीक है. अब मुझे ये देखना है वेदर 6 मंथ्स से ज्यादा एक्सीड हो रहा है या नहीं.
सपोज इफ आई हैव नॉट मेड अ पेमेंट नीदर आई हैव फाइल्ड अ रिटर्न, चलेगा नहीं क्योंकि नेसेसरी प्रिकॉशनरी मेजर्स एक्शंस प्रोसीडिंग्स हो जाएगी, जीएसटी डिपार्टमेंट ले लेगा। बट सपोज इफ आई हैव नॉट फाइल्ड अ रिटर्न और मेड पेमेंट ऑफ जीएसटी सिंस सितंबर, क्या ये क्राइटेरिया में फॉल होगा? होगा नहीं। यहां से एक महीना कब होगा? 19th ऑफ, ये माना जाएगा अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 2 3 4 5 20, मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 मंथ्स नहीं हो रहा, 20 आ जाएगा। तो 20 मार्च तक, अब 31 तक 6 महीने पूरे नहीं हुए, 5वां महीना 6वां महीना चल रहा था, पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स, नो। तो ये सितंबर से अगर मैंने कोई भी डिफॉल्ट किया, समझो ये पूरे ही साल भर का नहीं भरा है, तो ये वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। हाँ, जनरली मेरे रिपोर्ट में रहेगा, जनरली मेरे ऑडिट रिपोर्ट में स्टैट्यूटरी ड्यूज, बट कारों के तहत मैं इनका ही रिपोर्टिंग करूंगा, बिकॉज दीज आर द अमाउंट व्हिच आर एक्सीडिंग। यहां से देख लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो एज ऑन 31 मार्च 6 महीने से ज्यादा का पीरियड हो जाता है, 20 मार्च को 6 महीने पूरे हो जाते हैं, तो ये सारे ड्यूज आएंगे। आर यू गेटिंग? अभी समझे मैंने ये क्यों लिखा? दिस वोंट बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट, गेटिंग? तो दीज आर स्टैट्यूटरी ड्यूज, इसको लेकर के समझना था। एक और लेते हैं, ओह माय गॉड, दिस इज रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, इसको हटाना पड़ेगा। Repayment of dues मतलब, now we have taken a loan, and now we are supposed to make repayment. Okay, अब para 3 repayment of dues। अब यहाँ पे देखा जाएगा whether the company has defaulted in repayment of any dues or loan which was procured from either bank, financial institution, government और डिबेंचर होल्डर्स, वो वाले होंगे ड्यूज फ्रॉम दिस। तो ये जो कंपनी है, whether the company has defaulted in रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, वो भी किसके? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन दिया है, और ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स डिफॉल्टेड। दो तरह की बातें होगी यहाँ पे, या तो डिफॉल्ट किया है या तो नहीं, नो, तो मैटर विल बी क्लोज्ड। बट यस मींस नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड, उसको बाद में बोल देंगे पॉजिटिव कलर, यस इफ इट हैज डिफॉल्टेड। अब क्या करोगे? अब अगर डिफॉल्ट किया हुआ है तो अब यहाँ पे इन केस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको लेकर के हमको क्या करना? लेंडर वाइज डिटेल देने, ठीक है? अगर जो भी डिफॉल्ट हुआ है तो वो हमको डिटेल्स देने होंगे लेंडर वाइज, और अगर किया हुआ है आपने डिफॉल्ट तो बताना पड़ेगा the total amount of default and since when, the period of default, the period for which the default is being made, तो cumulative period कितना हो गया है वो बताना पड़ेगा। और lender wise details is to be given, lender wise detail is to be given, और यहाँ पे in case of default to bank, financial institution and government, the lender wise detail देना पड़ेगा, क्योंकि मतलब बैंक और 5 बैंक से लोन लिया, उनको ही रिपेमेंट है, एचडीएफसी का इतना, आईसीआईसीआई का इतना, इसका इतना, वो सारी चीजें वैसे लेंडर वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। आपको जो डायग्रामेटिक फॉर्मेट है वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है सेकंड नोट में, an application for reschedulement or restructuring doesn't mean that no default has occurred।
What do you understand by that? What do you understand by that? Give a thought to yourself, pause it and let me know. Give a thought to yourself, pause it and let me know. So you might have given the thought. वो बोल रहा है in case suppose if हमने default की है and suppose that we have taken new loan and of that new loan we have repaid the old one and then case started. So it doesn't mean default is not there. Or in case of internal reconstruction we can say when everything is revised, so it doesn't mean करके वो bad को good कर देते हैं over a period of time or due to some clauses and mutual understanding जो हम कर देते हैं, so it doesn't mean we have not defaulted. Are you getting? वो बोल रहा था पैरा 3 एक हो गया, उसके बाद है पैरा 3 9 application of money raised. Application of money raised by public issue and term loan. Public issue, it is either I have made public issue आ गया तो मतलब IPO आया होगा या FPO आया होगा या तो मैंने टर्म लोन ही लिया है, ठीक है, जो भी। तो if this is why I will raise money, now you tell me it is happening as such कि I have taken loan from the bank या तो फिर I'm just borrowing some amount from my friends or my known people. When I will do that? When there is some sort of requirement, right? तो मुझे कुछ करना होगा, कुछ काम के लिए मैं पैसे उधार लूंगा. When I will raise money, when I do, तुम तुम्हारे फ्रेंड के पास या किसी के पास बोरो कर रहे हो अमाउंट, कब करोगे? When you don't have adequate amount, you want to go at your birthday party, some your dad gave you only 1000 2000 और तुमको ग्रैंड होने वाली 5-10 हजार की पार्टी होने वाली, तुम्हारा एकदम फुल ऑन, ठीक है, तो यू हैव बोरोड दैट अमाउंट. सपोज इफ एनीबॉडी इज गिविंग यू, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, अज्यूम करने में क्या है, पार्टी की अज्यूम ही हो रही है, वो तो तुम दोगे, बट फिर भी अज्यूम ही कर रहे हैं कि सपोज, तो यू हैव टेकन दैट, रेज दैट अमाउंट, यू हैव बोरोड फ्रॉम समवन फॉर सम पर्पस. वैसे ही इन केस द कंपनी रेजेस द मनी, अब तुम 5-10 हजार लेते हो, बड़ी अमाउंट है, वो चुकाते चुकाते तुमको टाइम चला जाएगा. कंपनी ने इतना बड़ा रकम आईपीओ एफपीओ या कुछ करके निकाला, राइट इशू करके, वो तो प्रेफरेंशियल में आ जाएगा, बाद में आएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आ जाएगा. तो अब ये क्या, या फिर कंपनी ने बहुत बड़ा लोन लिया, व्हाई दे विल टेक इट? दे विल टेक बिकॉज दे वांट टू डू सर्टेन एक्ट, कुछ तो करना होगा, राइट? मींस देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ, व्हेन इट इज रेज्ड, तो ये रेज करने के लिए देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ पर्पस. So whether this purpose means application of that money is done for that purpose. Suppose if I am supposed to set up an entire plant, ठीक है, तो whether that particular activity is being started with respect to setting up an entire plant, for which we actually raised money from IPO, FPO और term loan जो भी है, ठीक है, इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर से भी आया तो फिर भी चलेगा, डेट इंस्ट्रूमेंट से भी लिया तो whether it is, whether the purpose, the application, the purpose is met, उसका एप्लीकेशन बात दो हो जाएगी, यस नो, यस हो गया तो मैटर क्लोज, बट नो, तो इसके रीजंस देने पड़ेंगे कि व्हाई दैट पर्टिकुलर सम व्हिच वाज रेज्ड फॉर सम सॉर्ट ऑफ पर्पस, व्हाई इट इज नॉट अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. रीजंस देने पड़ेंगे, डिले क्यों हुआ है वो बताना पड़ेगा, एंड इन केस इट इज being subsequently or delayed and it is utilized for the purpose, तो वो subsequent ratification भी बताना पड़ेगा, ठीक है. in case of para 3-9 कहाँ ये रिपोर्ट होगा, ठीक है, रीजन दे करके
नहीं, तो फिर ये वैसे ही रिपोर्ट होगा। और उसके बाद आ जाता है हमारा पैरा 310। ये तो हमारा फेवरेट रहा है, हमने इसमें भी देखा हुआ है, पहले लेक्चर से देखा हुआ है। इसको मिसस्टेटमेंट के नाम पे एरर, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट डन बाय समवन इन ऑर्डर टू डिसीव और हार्म समवन फॉर अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या कंपनी में फ्रॉड, फिर हमने कहाँ पे देखा ये फ्रॉड, फिर हमने ये फ्रॉड देखा कंपनीज एक्ट सेक्शन 143(12) में भी देखा, ऐसे 240 में भी देखा। अरे बेटे अब यहाँ पे देखें कि इनकेस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, मतलब ये जो हम जब कर रहे थे हमने नोटिस किया तो वो फ्रॉड इधर आने ही वाला है। अब नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड इसमें और उसमें क्या फर्क है। उसमें उन लोगों ने बोला है करके 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे फ्रॉड आ जाएंगे। मतलब तुमने समझो 1 करोड़ से कम वाले क्या थे, हमको बोर्ड को बता करके बोर्ड अपने रिपोर्ट में ले लेगा और बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक जा रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे जो रिपोर्टिंग हो रही है इन केस ऑफ फ्रॉड, वेदर द कंपनी हैज कमिटेड फ्रॉड, और उस पे फ्रॉड हुआ है, जो भी है, जो भी ऑफिसर ये वो सारी लोग इन्वॉल्व है, the amount which is involved, the people which are involved, the type of fraud, the nature of fraud, we can say, वो जो भी हुआ है फ्रॉड, जहां पे कंपनी इन्वॉल्व है या कंपनी पे हुआ है, जो भी है, तो अमाउंट, नेचर। अब उसमें क्या हो जाएगा, 143(12) में जो सेग्रीगेशन करके हमने रिपोर्टिंग किया हुआ था, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे हर अमाउंट का फ्रॉड यहाँ पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे है दिया हुआ, देखो ड्यूरिंग द ईयर एनी फ्रॉड इज बीइंग नोटिस्ड और रिपोर्टेड, तो सारे आ जाएंगे इधर 143(12) में सेग्रीगेशन का, वहां पे एक इंटीमेशन हो जाएगा। कंसीडर तो हम सारी फ्रॉड करते हैं, उसके बेसिस पे हमारे ओपिनियन पे इम्पैक्ट होगी। हर फ्रॉड को अगर 1 करोड़ से कम का भी हुआ है तो उसके बेसिस पे उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कंसीडर करके हमारे ओपिनियन पे तो इम्पैक्ट हर वैल्यू की फ्रॉड की होगी, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग होगा, यहाँ पे सारे आ जाएंगे। आर यू गेटिंग? दिस इज पैरा 3। उसके बाद पैरा 311 है, that is with respect to managerial remuneration. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब ये डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं। अब डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन कैसे देते हैं, दे आर नॉट दी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मैक्सिमम केस में दे आर नॉट दी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो दे आर पेड डिफरेंटली, उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है। बट द कंपनीज एक्ट ने क्या किया है, उनके रेम्यूनरेशन पेमेंट को लेकर के एक कैप फिक्स किया हुआ है, एंड वो कैप फिक्स हुआ है अंडर सेक्शन 197 आपने पढ़ा होगा, आपको अकाउंट्स में एक चैप्टर में रहा होगा, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। बेसिकली वहां पे देखने जाए तो कैप क्या लिखा है, ये तुमने पढ़ा हुआ है, तो उसको डिस्कस, मैक्सिमम इट इज 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, एंड एनी अमाउंट व्हिच इज टू बी पेड अबव 11% इज टू बी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एसआर पास करना पड़ता है मेंबर्स को, ठीक है, उसके लिए मेंबर्स को एसआर पास करना होता है। तो 11% इज द मैक्स अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अब मुझे कभी मिलता है, नेट प्रॉफिट आए come to know as on the last day 31st March of any financial year. So 11% net profit as on 31st March आ जाएगा. This is the max amount which can be paid to them, and in case any higher amount is to be paid, it will be paid. बट क्या हो जाता है, पेमेंट जो होता है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो होता है, ये तो हम मंथली ले लेते हैं, उनको कुछ एक रेगुलर इंटरवल पे उनको पेमेंट हो जाता है। अब उनको पेमेंट हो गया, अब उनको पेमेंट हो रहा है, समझो 20,000 हुआ, कभी 20,000 करके, बट 11% ऑफ नेट प्रॉफिट तो मुझे लास्ट डे मिलेगा। अब नेट प्रॉफिट समझो 20 लाख है, ठीक है, तो इसका 11% कितना होगा, 2,20,000, एंड 2,20,000 वाज पेड एवरी मंथ सपोज टू वन डायरेक्टर। अब ये आ गया, तो अब इसमें क्या हो गया, पेमेंट कितना हुआ रहेगा,
2,40,000 आई एम जस्ट स्ट्रिक्टली सेटिंग टू रेम्यूनरेशन वाला पार्ट, ठीक है, वो जो सैलरी के हिसाब मतलब सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं, बट ये जो अमाउंट एक रेम्यूनरेशन के नाम पे गई है, अभी क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, कैसे कंसिडर करते हैं, वो आपने पूरा एक चैप्टर किया, अभी वो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, अब वो उतना छोटा सेक्शन नहीं है कि अपन अभी इसको कवर कर ले, तो देयर यू नीड टू बी शार्प। तो अब इधर रैंडम एग्जांपल लेते हैं, 2,40,000 और रेम्यूनरेशन हमने 2,40,000 चला गया और 11%, और कंपनी एसआर पास करने को रेडी, मेंबर्स एसआर पास करने को रेडी। तो इसमें क्या हो गया, देयर इज 20,000 का एक्सेस पेमेंट, गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां पे ये बोल रहा है इफ इन केस ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन द रेम्यूनरेशन पेड is within the limit of section 197, paid in excess to whether necessary action or measures taken, necessary actions taken for recovery of additional amount। तो ये 20,000 हम क्या करेंगे, ईयर एंड के बाद वो डायरेक्टर से रिकवरी कर देंगे एज पर दी। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं whether the remuneration paid to the managers in case other word directors is within the set limit of that particular section, and if not, if it is in excess, whether necessary action was taken by the company for recovery the refund, हमको वापस दे दो वो अमाउंट एक्सेस, यहाँ पे जो तुमको एग्जांपल के साथ दिया, तो 20,000 हम उनसे रिकवरी करेंगे, हम वापस लेंगे, ठीक है, कितना अमाउंट और क्या, ये सारी चीजें होगी। दिस इज योर पैरा 311। उसके बाद इट कम्स टू पैरा 312। अब ये है इट इज विद रिस्पेक्ट टू चिट फंड कंपनीज टाइप, इट इज निधि कंपनी, इसको निधि रूल्स के तहत भी कुछ चीजें बताई गई है। निधि कंपनी लाइक इट इज वर्किंग फॉर इट्स मेंबर्स, इट इज वर्किंग जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वेयर दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मेंबर्स, निधि कंपनीज आर आल्सो वर्किंग इन सच अ वे। तो निधि कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि दे नीड टू मेंटेन द some sort of ratios and some sort of deposit needs to be maintained by them to meet their liability। तो क्या है, very first one it is given net owned funds, net owned funds to deposit 1:20 का रेशियो इन लोगों ने मीट किया है या नहीं। एंड लिखा है मैंने, एंड 10% अनएनक्यूम्बर्ड, मैं बोल सकता हूं फ्री अनएनक्यूम्बर्ड डिपॉजिट रखी हुई है, डिपॉजिट का 10% अनएनक्यूम्बर्ड डिपॉजिट्स है या नहीं, टर्म डिपॉजिट सर, टर्म डिपॉजिट रखा हुआ है या नहीं, ये क्यों पता है, टू मीट देयर लायबिलिटी के इन केस कुछ हुआ तो whether it is maintained by them or not, ये इंश्योर करना है, एंड दिस इज रिक्वायर्ड एज पर निधि एक्ट आल्सो, निधि एज स्पेसिफाइड बाय निधि रूल्स 2014, ठीक है। तो निधि कंपनी हैज मेंटेन दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रेशियो, ये 10% फ्री रिजर्व्स टाइप हो गया करके, भाई कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे कुछ रिजर्व्स में अमाउंट रखे होंगे, जो सेविंग्स करके रखे होंगे ओवर एंड अबाउ मीटिंग आर रेगुलर एक्सपेंसेस, और कुछ रखे होंगे कि कोई आपातकालीन सिचुएशन में काम में आ जाए। तो बेसिकली हम तो कैसे सेव करते हैं कि कोई बीमार हो गया, ये हो गया, तो उसके लिए रखते हैं, या तो फिर फ्यूचर के लिए हम कुछ खरीदने के लिए वैसे से, बट दैट अमाउंट इज करंटली यूटिलाइज्ड फॉर सम अदर पर्पस ड्यू टू कोरोना। तो वैसे वो निधि कंपनी को 10% अनइनक्यूम्बर्ड टर्म डिपॉजिट का वो बैलेंस मेंटेनिंग 10% अनइनक्यूम्बर्ड टर्म डिपॉजिट वो रखेंगे, उनको रखना पड़ेगा ही एट ऑल द टाइम, इट इज लाइक बैंक में वो जो सीआरआर एसएलआर मेंटेन करते हैं वैसा, ठीक है। दिस इज पैरा 312। उसके बाद
3 transactions with related parties। अब हमने इसको लेकर के क्या किया था, हमने एज एन ऑडिटर वी हैव kept an eye over it, kept an eye। वो जो 550 में देखा वो जनरल हर टाइप ऑफ एंटिटी के लिए था, बट अब ये यहाँ पे ये रिलेटेड पार्टी के साथ हमने मतलब देखा था कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसी रिलेशनशिप है और ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। और यहाँ पे रिलेटेड पार्टी को लेकर के सेक्शन 188 डील करता है। 177 तो ऑडिट कमेटी है, और ऑडिट कमेटी एक रूल बना देता है विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू डील विद। अब सेक्शन 177 इज आल्सो बिट वास्ट, और उसकी जो एक्टिविटीज में आता है तो रिलेटेड पार्टीज को भी ध्यान में रखता है, उसके एक्टिविटीज जो है, ठीक है। तो 188 स्पीक्स विद दिस, and in case section 188, and in case of financial reporting framework, that is your AS, उसमें 18 डील करता है। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर प्रोविजन wants to say, para 313 wants to say कि auditor should ensure whether the requirement of this section and the reporting framework is duly complied with it in relation to the presentation and disclosure of related party transaction। तो ये तो हमने बेसिकली 550 ने भी हमको जनरली बोला हुआ ही है, वहां पे देख लो ये इतना ही बोला है। फिर उसके बाद आता है पैरा 314। पैरा 314 comes with preferential allotment। preferential allotment जैसे वो that money was raised, वैसे ये preferential allotment हो। whether any preferential allotment of shares is being made either or private shares or debentures or anything, it is made or not। in case of debentures, fully convertible or partly convertible is made or not, वो देखा जाएगा। अरे लेकिन अगर किया हुआ है, whether the company has raised the fund, अगेन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके तुमने पैसा क्या अभी रिलायंस ने किया, रिसेंटली रिलायंस ने किया होगा ड्यूरिंग दिस कोरोना पॉइंट, ही हैज रेज्ड मनी, ठीक है, थ्रू सम इश्यूज। और एक आध दो कंपनी ने भी किया, तुमको शायद पता नहीं होगा, तो उन लोगों ने किया है। तो अब क्यों किया रहेगा, टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन और टू सेट अप समथिंग फॉर सम और द अदर पर्पस, whether that preferential allotment से भी जो पैसा रेज हुआ, whether it is utilized for the purpose or not, वो सेम एज जो हमने एप्लीकेशन मनी रेज्ड थ्रू आईपीओ और डेट इंस्ट्रूमेंट और टर्म लोन, whether it was utilized for the purpose or not। तो यहाँ पे देखेंगे अगर किया है कि नहीं किया है, तो हम क्या देखेंगे कि अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, रीजंस फॉर नॉन कंप्लायंस देने पड़ेंगे कि भाई क्यों इट इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस, रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 1 the purpose for which fund was raised, it is like your that only। अब लास्ट में पैरा 315, that is non cash transaction। non cash transaction between it is between the directors and the company। ये जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन की बातें हो रही है, इट इज बिटवीन कंपनी एंड डायरेक्टर्स। या तो कंपनी ने और डायरेक्टर्स के बीच कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वेदर एनसीटी हुआ है, बात क्या हो जाएगी, यस नो। नो तो मैटर टू अस, but if yes, so whether the provisions of section 192 is duly complied or not with respect to this, with directors or any other person who is connected with directors। अगर हुआ तो provisions of section 192 is duly complied with or not, वो देखा जाएगा। in the last matter which needs to be reported, that is registration with RBI।
all those companies which are required to obtain registration with RBI as per section under section 45 IA of the RBI Act, those who are basically ये NBFC होती है जिनको registration obtain करना होता है, तो whether they have obtained the registration or whether they have made an application for registration, so all those companies which are covered under the section of 45 IA and which are supposed to obtain registration from RBI, whether they have obtained the registration from RBI, and if not, so whether application is made or not, वो check करेगा auditor. Okay, so this completes your Karo. Take care. The diagrammatic presentation which we are doing over here, it is given in your book, so no need to just कॉपी, ये है तुम्हारे उधर, और अगर तुमको लिखना है तो तुम तुम्हारे बुक में लिख सकते हो. ओके, चलो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.